Hello students, good morning. I am Dilip here. So I came across and have taken your science chapter 1, that is matter in our surroundings. So first of all, you should know students, there is online classes starting for each and every classes. So just for the focus on your study, so that your study cannot be stopped at any moment. Whether you study in school or online, both have the same value. So guys, keep in mind, if you have any doubts in first or last, I am telling you, you can ask anytime. We are happy to help you and always free 24/7 for you. So you are aware of the MBG public school, which is a very big school according to their globalization. If you see the global all of the world, so MBG has taken place there with their equipments and a lot of substance they have. So they are going to utilize these all things so that you can understand their value. And keep in mind, if you study online, there is a no problem in your study. So let us start chapter 1, that is matter in our surroundings. So basically, first of all, I'll explain the matter. What is matter? So everything, whatever you are seeing in front of you, that is matter. Later on you will study what are the types of matter, what is the state of the matter, so how it can be divided, what is the classification of matter. These are all things we are studying in the chapters. So slowly and gradually, keep in mind, just slide over the video and see, keep in mind, always get the words of what I am telling. It does not mean I will not tell Hindi. हिंदी में ये बात करूंगा दोस्तों. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मैटर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ. मैटर वो चीज है जो आपके सामने दिखता है. चाहे आप यू आर ऑल्सो ए मैटर, आप भी खुद एक मैटर हो. आपके पास फोन है, दैट इज ऑल्सो ए मैटर. वो भी क्या है? मैटर है. There is a large variety of things with a different shapes, size and texture. मतलब ये कि दुनिया में अनेक प्रकार के मैटर अवेलेबल है आपके सराउंडिंग्स में. वो भले ही आपके शेप अलग हो, साइज अलग हो सकते हैं, उनकी क्वालिटी अलग हो सकती है, उनकी बनावट अलग हो सकते हैं. So everything in the world, in the universe is just नेम्ड एज अ मैटर. दुनिया में जितनी सारी चीजें सब मैटर, चाहे आग हो, चाहे पानी हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, दुनिया में अनेक प्रकार के जीव जंतु भी मैटर ही है. दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, विच इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स. लाइक जैसा कि हम लोग सांस लेते हैं, दैट इज ऑल्सो मैटर. जो हम लोग खाते हैं वो भी मैटर है. जो देखते हैं स्टोन्स, वो भी अब मैटर है. क्लाउड्स है, स्टार्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, इवन अ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर और पार्टिकल्स ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर्स. मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैटर डज नॉट हैव द फिक्स क्वांटिटी और द फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड साइज. उसके पास मैटर के पास डिफरेंट साइज हो सकते हैं, डिफरेंट शेप हो सकते हैं, मैंने पहले बताया. इसी तरह जैसे कि वाटर का ड्रॉपलेट्स है, वो भी क्या है? आपके मैटर्स है. अब सैंड देख कितना छोटा, वो भी मैटर्स है. सो इन अदर वर्ड्स ऑल्सो दे हैव मास एंड द वॉल्यूम. उसके पास क्या होते हैं? क्वांटिटी, मास होते हैं और वॉल्यूम होते हैं. अब मास क्या होता है? What is the mass? Mass of any matter. That also we'll discuss. Mass volume is totally different thing. Mass is a single unit like kg, kilogram. Mass किसी भी मैटर का वेट कितना हो सकता है, that is mass. अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशनल. वॉल्यूम क्या होता है?
3 डायमेंशनल, किसी भी चीज की वॉल्यूम, जैसे आपने फोन पकड़ा होगा, फोन की लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, तो दैट कंसिस्ट 3 डायमेंशनल, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है. It means that is volume. If you calculate the volume of any substance, there is a last formulatic value centimeter cube. So cubic centimeter is the unit of any volume. Since early time क्या होता था, पुराने जमाने में human beings have been trying to do any different activity their surroundings, वो लोग देखते थे आगे पीछे. और अर्ली इंडियंस जो फिलोसफर थे वो भी क्लासिफाइड किया है मैटर को अलग अलग 5 बेसिक एलिमेंट्स. क्या है? 5 बेसिक एलिमेंट्स. जो हमारा शरीर भी मैंने बताया है 5 डिफरेंट एलिमेंट्स से बना हुआ है. वो क्या है? पंच तत्व उसको बोलते हैं. इन हिंदी वी कैन से, इन संस्कृत वी कैन से पंच तत्व. पंच तत्व इसका मतलब ये है कि एयर हो गया, जो एवरीथिंग विच इज नियर बाय यू, विच इज इन सराउंडिंग, जो आपके सराउंडिंग में है, वो क्या है? मैटर है. लाइक अर्थ हो गया, एयर हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया, वाटर हो गया. जीव जंतु सारे 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं और 5 तत्वों में बनते भी हैं. तो अब देखो, पुराने जमाने में तो ये बता दिया गया कि जो मैटर होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन क्या है? 5 बेसिक एलिमेंट्स. अब जो न्यू मॉडर्न साइंटिस्ट आए, अब एंशिएंट साइंटिस्ट जो आए, वो क्या बताए? इसके एंशिएंट में तो ये बता दिए कि जो फिलोसफर्स है वो बता दिए कि क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं 5 तत्वों के. लेकिन अभी जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए मॉडर्न डे में, उसने बताया कि मेडिकल जो मॉडर्न है, अगर मेडिकल क्लासिफिकेशन किया जाए किसी भी मैटर से, मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. मैटर क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी से बेस्ड होता है. सो इन दिस चैप्टर जस्ट वी विल लर्न अबाउट द मैटर ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड वी विल टेक थ्रू द सबसिक्वेंट चैप्टर. So let us start the first thing, that is how we can distinguish the physical nature of any matter. ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों. फिजिकल नेचर किसी भी मैटर का हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये मैटर फिजिकल है, इसको हम लोग फिजिकल बोलते हैं. So let us start. अब इसमें देखिएगा, for a long time two school of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. 2 स्कूल में मॉडर्न साइंटिस्ट ने देखा, 2 स्कूल में क्लासिफिकेशन के लिए गया और दोनों का पार्टिकल्स देखा कि मेटल्स. एक तो बोला कि कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड. ठीक है. अब एक स्कूल ने क्या बिलीव कर लिया कि कंटिन्यूस पार्टिकल्स है, और एक ने बोला कि मेटल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड. सैंड के छोटे छोटे जो कण होते हैं, बालू के छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मटेरियल्स, एनी मैटर. उसके बाद लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी किया गया. धीरे धीरे एक्टिविटी में आपको बताऊंगा डिटेल्स में. एक एक्टिविटी जैसे कि हम लोग घर में भी एक्टिविटी करते हैं कि पानी ले लिए और उसमें नमक डाल दिए या फिर चीनी डाल दिए, थोड़ी देर में देखेंगे क्या होते हैं, पानी और चीनी आपस में मिल जाते हैं. तो कंसिस्टेंसी होती है किसी भी मैटर की एक मैटर में घुलने की अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर. कभी कभी क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में घुल जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं घुलता है. अब उसको घुलाने के लिए वी हैव टू ऐड सम केमिकल सब्सटेंसेस, दैट इज कैटलिस्ट का यूज करते हैं हम लोग. धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे उसको. सो अब हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि जो मैटर है, एक्टिविटी जो मैंने आपको बताया वही एक्टिविटी आपके इसमें दिया हुआ है. उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको मैं बता दूं कि द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. मास की जो एसआई यूनिट होती है वो केजी होती है,
और SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर भी, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्यूबिक होनी चाहिए, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, क्यूबिक होनी चाहिए। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम लीटर, वॉल्यूम को जैसे लिक्विड की वॉल्यूम को मेजर करते हैं तो लीटर में कैलकुलेट करते हैं, तो 1 लीटर इज इक्वल टू होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं, 1 लीटर इज इक्वल टू होते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 लीटर इज इक्वल टू होते हैं 1000 मिलीलीटर, और 1 लीटर में आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। So now we'll go further and we'll see the activity which is given in your book. आपकी बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं फटाफट और फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अब ये एक्टिविटी आपके दिए हुए हैं, see the activity. It is given in activity what? The activity is 1.1. अब इसमें बताया है कि इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने घर में भी, बहुत इजी एक्टिविटी है। तो इसमें करना क्या है आपको, टेक अ 100 मिलीलीटर बीकर, मतलब आपके पास बीकर हो चाहे एक, अगर 100 मिलीलीटर का कुछ सब्सटेंस आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको आराम से ले सकते हैं। एक ग्लास ले सकते हैं, एक ग्लास पूरा पानी भर लीजिए, आप पूरा पानी भर लीजिए, ठीक है। अब पूरा में से हल्का थोड़ा सा जगह खाली होना चाहिए। उसके बाद क्या करिएगा, 2-3 चम्मच आप नमक डाल दीजिए, इजी आपके पास घर में अवेलेबल सब्सटेंस है। अब उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, नमक घुल जाएगा। नमक घुलने के बाद आप जब ऑब्जर्व करेंगे ना, उसके वाटर की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज दिखाई देगी। सो वी कैन से द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एनी वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम रेज्ड इन दैट ग्लास, मतलब जिस सब्सटेंस में जितना वॉल्यूम हमने ऐड किया, सॉल्ट की वैल्यू हमने ऐड किया, वो क्या है, लेवलिंग, इंक्रीज लेवल है उसके, उतने ज्यादा उसमें लेवल में इंक्रीज हुए हैं। सो व्हाई कैन नॉट वी परफॉर्म द सेम एक्टिविटी इन योर, अब सेम आपके घर में कर सकते हैं ये एक्टिविटी आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस एक्टिविटी को करने में, ठीक है। जस्ट इसमें मैंने आपको ये बताया कि इसमें मैटर कंसिस्ट करता है, वो हर एक चीज मैटर है आपके, ठीक है, चाहे वो सॉल्ट है चाहे वो कुछ भी है, तो वो क्या आपके मैटर है। सो अब हमको इस आंसर का पता आराम से लग गया कि these questions we need to use the idea that matter is made up of particles. So in this we can easily say कि जो मैटर है आपके छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। अब वो जो सब्सटेंस है जो सॉलिड फॉर्म हो गया, लिक्विड फॉर्म हो गया, वी कैन इजीली से कि ये जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल से ही अब एक लिक्विड के फॉर्म में वो आ रहा है। सो वी कैन इजीली आंसर दिस ऑल टाइप्स। सी द एक्सपेरिमेंट, यू कैन सी हियर द डायग्राम, यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो, आप डायग्राम देख सकते हैं। व्हेन यू डिसॉल्व सॉल्ट, व्हाट आर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, क्योंकि वाटर कंसिस्ट क्या, वाटर की जो लिक्विड है वो पार्टिकल्स थोड़ी सी डिफरेंट साइज में फॉर्म की रखी है। सो हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स, अब ये कितना पार्टिकल्स स्मॉल है मैटर का। सो देयर इज अ वेरी टीनी पार्टिकल्स, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है। सॉल्ट इज अ नॉट स्मॉल पार्टिकल्स, सैंड इज नॉट अ स्मॉल पार्टिकल्स, इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग्स में, विच कैन बी इजीली नॉट सीन बाय आवर आईज, जो हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से हमको उसको देखने में बहुत तकलीफें होती है। सो दैट इज वाई माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ एनी मैटर कैन बी एग्जिस्ट। ये क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, माइक्रोस्कोपिक। सो एक्टिविटी 2 क्या है, इट इज गिवन, अब जो टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटासियम, पोटासियम क्या होता है, पोटासियम परमैंगनेट इज आल्सो एंड डिसॉल्व देम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब उसको 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 मिली ऑफ दिस सॉल्यूशन पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर।
अब वहां से 10 ml वाटर आप ले लेंगे और 90 मिलीलीटर का जो सॉल्यूशन होगा उसको आप ऐसे ऐसे करते करते, इज द वाटर स्टिल कलर्ड? हाँ, वाटर फिर भी कलर्ड होगा, वाटर विल बी स्टिल कलर्ड। इफ यू से द एक्टिविटी, you can easily understand the distance which is given to any substance of the water present in that solution. Got it? एक्टिविटी भी आप खुद से कर सकते हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, इनकी कलर में चेंजेस आएंगे। अब एक टाइम ऐसा आएगा जो कि वाटर की जो ओरिजिनल कलर है वो वापस आ जाएगी। कंटिन्यू। सो लेट अस स्टार्ट